This is a river, and this was one. Both born in the same mountain range, the Aravalis. This is that range, and this is also that range. See the difference? But before we ask what changed, we need to ask something more fundamental. The Aravalis are among the oldest mountain ranges on Earth, but their importance isn't so much geological, but existential. Stretching across West India, these hills act as a natural climate barrier. They slow the advance of the Thar Desert, recharge groundwater, and give birth to river systems that sustain millions. The Aravalis are more than just a mountain range. In many ways, it is tied to the lives of the people who live in its shadows. Their culture, their history, their livelihood, and a large part of their reality is dependent on it. जब ये भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई थी ना, उस टाइम ये जल जंगल ज़मीन जो पहले से ही बसा हुआ है, भगवान से भी पहले, इसलिए हम इसको अपने पूर्वज मानते हैं, इसे भगवान मानते हैं अपना. But there are two distinct faces of the Aravalis, one ravaged, one resilient. Locals in the mine scars battle lung disease and vanished livelihoods. Those in the green fight to preserve their future. From water scarcity to cultural erosion, mining threatens everything they hold dear. So they have no other choice but to fight. This is their story. हमारा सब घर नहीं जाना चाहिए. हमारा बहुत मेहनत से घर बने. हमारे घर नहीं जाना चाहिए बस. और सब हमारे पशु पक्षी सब गाय है, भैंस है, सब सन्ने के लिए जाती है. हमारा रिश्ता है साहब, हमारा नहीं तोड़ने देंगे. ये भगवान के तरह हम मानते हैं साहब, हम नहीं तोड़ने नहीं देंगे. हम बंद करो, बंद करो, बंद करो. 500 मीटर में ब्लास्टिंग बंद करो, बंद करो. Among those documenting and resisting this spread is environmental activist Kailash Meena. For years, his name has surfaced across village protests, court petitions, and environmental complaints linked to the Aravalli Belt. Locals often call him the guardian of the hills. But his involvement did not begin in courtrooms. It began on the ground, in villages already living with the consequences. शुरू में लगभग 30 साल पहले यहाँ खनन का जब ये कारोबार शुरू हुआ था कुछ इलाकों में, तो लोगों को एक सपना दिखाया गया था कि ये विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा. लेकिन जैसे जैसे ये शुरू हुआ तो वहाँ जो भयावह दिक्कतें आई लोगों को, वहाँ का पानी ख़त्म हो गया, वहाँ का चारागाह ख़त्म हो गई, छोटी नदियाँ थी वो ख़त्म हो गई. उसके परिणाम खनन के आए कि लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया. लाखों हेक्टेयर ज़मीन एक एक ज़िले में बंजर हो गई, और बंजर हो गई तो आजीविका का संकट खड़ा हो गया. बच्चों का अपराधीकरण बढ़ गया. इससे पानी नहीं रहेगा तो उसमें आजीविका कहाँ से आएगी. अभी धूल से जितनी तरह की बीमारियाँ उस इलाके में माइनिंग की वजह से हुई, तो ये वहाँ के लोगों का सारा अस्तित्व का संकट है. ये अस्तित्व का सवाल है कि वो उनका बचना, हमारा अस्तित्व बचना यहाँ अरावली की उस पर निर्भर है. अरावली नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे. Wherever mining happens, the nearby areas get contaminated. The rampant blasting sends shock waves which causes walls of nearby houses to crack, and a blanket of dust covers the houses and crop fields. The chemicals contaminate the groundwater, making it unusable while depleting the aquifers. And the deafening sound of blasting and machines echo all day and all night long. This becomes a severe health hazard for the residents. Village after village, the pattern he describes begins to repeat, and nowhere is that more visible than in Jodhpura.
Residents here allege that years of nearby blasting damaged homes, polluted the air, and sharply reduced groundwater availability, pushing the village into prolonged protest. Their complaints eventually reached the National Green Tribunal. In its order, the tribunal directed that blasting maintain safe distance norms and that compensation be assessed for damaged houses and affected residents. But villagers say meaningful relief never followed. For more than 1,000 days, Jodhpura residents have remained in protest, demanding not just compensation but enforcement. Because on paper, they say they won. On the ground, they say the crisis continues. संघर्ष हमारा आज भी जारी है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आबादी के नज़दीक ब्लास्टिंग से हमारे मकानों में दरारें आ गई। खाना बना रही थी और ऊपर से के नाव एकदम से के नाव सुरंग चली और दम दे पूरा ही मेरे ऊपर ही पड़ गया के नाव जी। मेरे चोट नहीं लगी, ये तो भगवान की कृपा हो गई, मेरे चोट नहीं लगी। नहीं बच्चे 3 जना था, हम सचिन मैं और मेरी पोत 2 ही थी। तीनों एंडे बैठे थे, एंडे दम दे पड़े हो या के नाव तो ऊपर सार के नाव। सबसे बड़ी बात ये कि ये गहराई तक खनन कार्य करते हुए चले गए, इससे हमारे गांव का पानी चला गया। पीने के पानी की समस्याएं भी आ गई हैं, टैंकरों से ग्रामवासी पानी मंगवा रहे हैं। अब 500 रुपये का एक टैंकर आता है तो गांव वालों को पीने के लिए भी पैसे चुकाने पड़ रहे हैं पानी के लिए। Water scarcity is not new to Rajasthan. For decades, villages around the Aravalli survived by carefully harvesting seasonal river flows originating in these hills. Small dams and check structures helped capture monsoon runoff. Over time, that stored water recharged aquifers, revived wells, and stabilized agriculture. For many villages, it was the difference between seasonal distress and relative water security. Residents now fear that expanding mining could reverse those gains by damaging catchments, altering drainage paths, and accelerating groundwater depletion. जब 400 से 500 मीटर दूरी पे ये क्रेशर प्लांट था, उससे ही गांव में समस्याएं शुरू हो गई। तो साहब 82 मीटर की दूरी पे लगे हुए क्रेशर प्लांट से तो और भी हालात ख़राब हो गए गांव में। दमा, श्वास, एलर्जी जैसी 90% ग्रामवासियों को स्किन एलर्जी की परेशानी है और डॉक्टर साहब ने मेडिकल करके ये कहा कि ये जो स्किन के रोग है ये इस धूल डस्ट से ही होना संभव है। रात दिन ये खटखट होने से गांव वालों को सुनने की क्षमता भी कम हो गई है। बहरेपन की शिकायतें भी गांव में आ गई हैं। अधिक गहराई तक जल स्तर चले जाने से फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो गई। तो 40 से 42 साल की उम्र के इंसानों में भी घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसी समस्याएं आम हो गई हैं। जिला प्रशासन के पास जा कर हमारे हौसले नष्ट नाबूद हुए हैं। अब आम आदमी लड़ाई लड़े तो कितनी लड़े साहब। एनजीटी कोर्टों के फैसले को ये लोग मानने को तैयार नहीं है, तो फिर कहाँ जाएं आम ग्रामीण। तो उनके पास तो एक ही हथियार है कि धरने प्रदर्शन पे बैठ जाओ। 2022 से शुरू होकर के आज 2026 तक भी समाधान नहीं होना, ये कितनी बड़ी बात है। इस क्रेशर से धूल डस्ट का 24 घंटे ये आलम है कि हमारी छतों के ऊपर देखिए आपको 1 इंच के करीब पर जमी हुई है, जबकि रोज़ हम सफाई करते हैं। ये हालात है। इससे बहुत अधिक रात के समय तो बहुत अधिक डस्ट आती है। ये रात को क्या करते हैं क्या नहीं करते उसका पता नहीं। थोड़ी देर बात कर लेते हैं तो ही सांस उठने लग जाता है। ये हालात है हमारी। सर अस्थमा की तो सांस की थोड़ा बहुत काम करते हैं, सांस उठने लग जाता है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मेरी गर्दन पे देख लो, शरीर पे देख लो, मतलब स्किन एलर्जी है। This situation gets a lot worse when your house is located barely a stone's throw away from the mining site. हमारे यहाँ ब्लास्टिंग से रोज पत्थर आते हैं। ये देखो ऊपर की तरफ में कितने 5-5 केजी के पत्थर आते हैं रोज के आते हैं। ये जो पत्थर है ना, ये परसों की ब्लास्टिंग से आए थे। डर लगता है ना, मकानों की तरफ अंदर घुस जाते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। आवाज एक मारते हैं, फिर बाहर निकलते ही नहीं। इनका डर लगता है पत्थरों का। ये तो बिना लाइसेंस की गोली चलती है। ब्लास्टिंग का कोई टाइम ही नहीं है। ये जब ब्लास्टिंग होती है ना, तो आधा पौन घंटे तो सांस नहीं लिया जाता है। बारूद की उनकी इतनी तगड़ी बदबू होती है और इतनी मिट्टी उड़ती है जो बहुत ज्यादा। ऐसा लंगड़ा हो गया ये मिट्टी दूर से जाने से मेरा खुद सांस लेने में तकलीफ आ रही है
रात को सारी रात में ऐसे खोड़ता हूँ जैसे तो बंदर खोड़ते हैं। जैसे सुबह उठते हूँ तो इतनी इतनी मिट्टी शरीर के ऊपर से और मिलती है, तो मैं ऐसे करता हूँ खोर 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 खोर। डॉक्टर ने ये बोला कि भाई तुम्हारी मिट्टी है, ये मिट्टी ख़राब है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, नहीं मजदूरी करता हूँ, कोई टाइम मजदूरी मिलती है, कोई टाइम नहीं मिलती, तो मैं मेरी टाइम पास कर रहा हूँ। ये मकान बनाया था, कर्जा करके मैं मकान बनाया, तो ये भी सारा गया। अब कल परसों बरसात हुई थी, मैं छोटो बच्चे था, मेरे एक पोता हुआ था 4 महीने का हुआ था, उसको मैं बाहर लेके बैठ गया था। बाहर लेके ऐसे बैठ गया, इस मकान को कोई पता नहीं कब पड़ सकते है। पशु चरते थे इस पहाड़ी के अंदर बहुत पहले, ये पूरी पहाड़ी के ऊपर ही, ये देखो ये यहाँ से खा गए इसको, पूरी को खा गए इसको। इस पूरी पहाड़ी के ऊपर ही पशु ही चरते थे पहले। कि हमारे गांव में ऐसा बुरा हाल हो रहा है इसके रोड का कि यहाँ पर हमारे गांव में कोई रिश्ता करने के लायक बच्चियों का रिश्ता करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो आते नहीं हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ पर ये खदानें चल रही हैं और हमारे यहाँ ध्वनि प्रदूषण होता है, सिलिकोसिस की बीमारियाँ चल रही हैं, अनेक प्रकार की आँखों में जलन खुजली होती हैं। Across generations, the Aravalis functioned as commons for play, pasture, and seasonal water. As mining footprints expand in parts of the range, residents worry those shared spaces are shrinking. वो ठेठ ऊपर तक वहाँ तो तीज खेलती थी हमारे गांव की सब औरतें, सब छोटे बच्चियाँ और औरतें ही जाती थी ऊपर। ये सब इनकी मेहरबानी है, खनन माफियाओं की है। ये इन खनन माफियाओं से बिल्कुल रोज़ रोज़ पत्थर आने से, डेली की धुआं आने से, ये गर्द आने से बिल्कुल दुखी हो गए थे। एंड आ गया था हमारा बिल्कुल। अगर अभी तो इससे जीने से भी दुर्भर तो मरना ही अच्छा है, या तो कुछ करें। उसके बाद में हमने ये कदम उठाया है। Rohtas and Gyarsi Lal visited the local state district magistrate to seek a solution to the mining problem, especially mining happening after 6 p.m. They allege that mining at night is illegal. The SDM assures them that nighttime operations will stop. That very night, however, this happens. Radhesham Shuklavas was also present at the meeting, demanding a ban on the plying of overloaded dumper trucks along the 14 feet wide Kasli Shuklavas road, which endangers the lives of all those living alongside it. Those villagers have been protesting for over a month now. The SDM asked them for more time. हमारे साफ हवा पानी में जहर घोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। Now let's take you back to the images of the rivers. This is or was the Sota River. साहब हम इस सोता नदी के अंदर जब छोटे छोटे थे ना, 5-5, 8-8, 10-10, 12-12 साल के, जिस टाइम नहाने जाते थे ना सुबह, तो पानी आता था, उसको जिम जाता था इस ऐसी ठंडी के अंदर, और उसको हम ऐसे हाथ से करके फिर ऐसे ज़ोर से ऊपर भगाते थे। फिर जो कुछ छींटे पड़ते उनको रगड़ते, बाहर आके रगड़ते थे, फिर दोबारा अंदर जाते थे उसके। तो वो आनंद तो अभी है ही नहीं। In several Aravali villages, farmers and residents are alleging systemic damage to the Sota River system. Several villagers interviewed for this investigation claim sections of the riverbed have been filled with slurry, mining waste, and excavated earth. In some cases, overnight. Farmers report heavy dust deposition on crops and reduced yields. Hydrology experts have long warned that when seasonal river channels are obstructed, groundwater recharge suffers, a risk villagers say is now playing out locally. सर ये हमारी फसल है, देखो सरसों की, ये प्लांट की वजह से पूरी सफ़ेद हो गई है। हम सांस लेते हैं तो भी ये डस्ट हमारे फेफड़ों में जाती है। हर दिन पूरी फसल ख़राब हो गई है, पानी भी ग्रोथ नहीं कर रही है, क्या करे। देखो हर फसल पे ये देखो सफ़ेद हो रहे पत्ते। बच्चों का पेट किससे भरे? हमारे पास यही खेती का ही धंधा है, जिससे हम क्या करें। भीख मांगने लायक कर दिया इस प्लांट ने। हम जहर खा के मरे या क्या करें, आत्महत्या करेंगे। हमारी फसल पूरी ख़राब कर दी इसने। जब फसल कटाई करते हैं तो हमारे फेफड़ों में जमती है, रात को या सो नहीं सकते हैं, खाना तक नहीं खा सकते, इतनी डस्ट उड़ती है भयंकर दिन रात।
सर ये ग्रोथ है ना, जैसे सरसों की फलियाँ हैं, ये फली बन गई, ये नहीं बनी, ये डस्ट की वजह से देखो ये नहीं बनी है। पहले जैसे 100 क्विंटल होती थी, अब 10 क्विंटल फसल भी नहीं होगी, 10 की भी उम्मीद नहीं है, 10 क्विंटल भी हो जाएगी, ये हालत है अभी। इतना परेशान है सर। The next morning, a farmer complained of sewage being released into his field, destroying all his crops. अब देखो जी, ये डस्ट, ये माटी, पानी, ये जो डस्ट है ना, जो सारे चनों की फसल को ख़राब कर दिया। देखो इधर तक देखो, वहाँ देखो, तो सारे में देखो। यहाँ से बच्चे पालते हैं, इसे फसल करके दाना भी नहीं हो रहा है इसमें। और ये कब हुआ? ये रात को। कल रात को? हाँ, कल रात को। अच्छा, और आपने कैसे पकड़ा? अब सुबह में तो आया, जब इसको ढक रहे थे मट्टी से। हाँ। जब वो LNT को मैं हटा दिया यहाँ से, मेरे को फिर बुलाया मैं गरखों को। अच्छा। कम से कम में 200 मन पक्का अनाज होता है, और अब 10 मन अनाज नहीं होता है इसमें। ये हालत है। Across Rajasthan's mining and stone cutting belts, silicosis has become a recurring diagnosis among workers. The disease is caused by prolonged inhalation of fine silica dust. It progressively scars lung tissue and has no known cure. Health workers say many laborers are diagnosed only after significant lung damage has already occurred. Many workers interviewed said protective gear was either unavailable or inconsistently used during years of stonework. Setharam has to be on a ventilator constantly. When there's electricity, he breathes through the electronic ventilator. And when there's no electricity, which is quite common in this part of Rajasthan, then he has to rely on an oxygen cylinder, which lasts not more than 7 hours. If he's removed from the support, he can die any minute. He isn't the only victim of silicosis in his family. A few months ago, his brother died of the same. His father farms and does odd jobs to support the family. This is the story of several such households in Rajasthan's Pindwara. ये ज़्यादा इसलिए बोला, ये टेबलेट मैंने खाई है, तो नहीं तो इतना टैबलेट का पावर है। पढ़ने ज़्यादा पास नहीं कर रहे थे, नहीं छुट्टी में फेल हो गया था ना, इसलिए मैंने इसलिए घर से भाग गया था। मैं पोरबंदर गया था, एक वो कर रहा था। वो क्या कर रहे थे? पोरबंदर ही बड़ा मंदिर है, हाँ। उसमें गए थे। सुबह में ज़्यादा होता है सांस का, तो वो कप को थूकते रहो, नहीं थूको तो फिर ज़्यादा होता है सांस। अभी भी वो चल के आया ना, सांस तो वो धीरे धीरे आधा घंटा हो जाता था। डॉक्टर तो इधर आके फिर भर्ती हो गया ना सिरों। अच्छा, हाँ। तो फिर डॉक्टर ने क्या बोला? उधर ने 7 दिन के ऐसा रखा था। उसके बाद में वो सिलिकोस वाला करवाया था, पिंडवाड़ा, तो यहाँ पे करवाया तो फिर कर दिया। अच्छा। हाँ, और लेट से हो गया था। अच्छा। दवाई तो लेता हूँ रोज? हाँ, दवाई नहीं ले तो फिर चलता हूँ तो वो सांस चाहिए। अच्छा। धीरे चलना पड़ता है, जोर से चलो तो ज़्यादा है। अच्छा, अभी बात करने में तकलीफ हो रही है? हाँ, वो सांस चाहिए। तकलीफ हो रही है? हमारे को तो बहुत होती है तकलीफ। हमें खुद को धंधा करना पड़ता है, नहीं पैसे हो तो सूखी रोटी भी खानी पड़ती है हमारे को। हम तो खेती बाड़ी ही करते हैं, दूसरा धंधा तो कर नहीं सकते। घर से जाते हो तो इसके पास कौन रहते, कोई नहीं है रहने वाले। थक तो जाते हो, पर क्या करें, बच्चे पर छोटे हैं हमारे, नहीं चला तो चलाना पड़ता है, क्या करें। दूसरा तो कोई धंधा तो करते नहीं है। Across multiple villages, residents also describe what they call a climate of pressure around mining activity. Several villagers allege intimidation, late-night operations, and attempts to discourage complaints. धंधो ही कर रहे ना, खेचूं और लोड क्यों ले रहा है? और लोड क्यों ले रहा है? बंद से ना और लोड की तेरा तकलीफ चाहिए। हाँ, मेरे 1 लाख तकलीफ चाहिए। काल छोरा मेरे पास पड़ को भी। These claims could not be independently verified in every instance.
However, the consistency of accounts across locations raises serious questions about oversight and enforcement on the ground. Across the Aravalis, resistance has never been carried by one voice alone. And for many communities, the struggle remains deeply personal. For Kailash Meena, the fight for the Aravalis has come at a cost. Years of petitions, court battles, and he says, repeated attempts to silence him. Yet he continues, because across these hills, the stakes are only rising. पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने 97 से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ गुहार लगाने की, जब नहीं हुआ तो फिर हमने देखा कि लोगों में जन जागरूकता हो, तो हमने पदयात्राएं शुरू की। 2 दिन की पदयात्राएं होती थी, उसमें लोकगीतों के माध्यम से इसके महत्व को समझाते थे कि भाई ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इसको एक दिन में काटेंगे तो फिर भविष्य कहाँ से बचेगा। जैसे जैसे हमारी पदयात्रा का सिलसिला बढ़ता रहा, दूसरे तीसरे साल में जाके पूरे खनन कारोबारी ये बहुत नाराज़ होने लगे। उन लोगों पे झूठे मुकदमे, उनको डराना धमकाना। मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में 2005 से 2010 तक मेरा अनुभव बहुत कड़वा है कि वहाँ जिस तरह से मुझे बेइज्जत किया गया कोर्ट में ये, और लेकिन मेरे पक्ष में फैसला दिया कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए माइनिंग की जाए, तो मैं बड़ा खुश हुआ। दिसंबर के महीने में 2011 में मेरे हाथ बांध के और कपड़े निकाल के परेड करके लोगों को दिखाया गया कि मेरे को तोड़ने की कोशिश की। उस दौरान लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए कि उससे एक मेरे को निजी जीवन में बहुत दिक्कत हुई कि इस सदमे में जो मेरे साथ हुआ उसमें मेरे बड़े भाई को बहुत दिक्कत हुई, उनकी डेथ हो गई। उसी दौरान एक पचेरी गांव है झुंझुनू ज़िले में, यहाँ सीमा से लगता हुआ, उसमें पंडित तारकेश्वर शर्मा थे जो राजस्थान फ्रीडम फाइट में बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उनके परिवार के 6 लोग, उनको ताम्र पत्र दिया था, वो जेल गए थे, जिनमें 2 महिलाएं भी थी। उनके नाम से गांव का स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। उनका पौत्र जो मेरा प्रदीप, मेरा दोस्त था, वो भी इलीगल माइनिंग के खिलाफ लड़ रहा था। उसको कोर्ट से स्टे मिला और स्टे में माइनिंग हो रही थी, इसकी वो फ़ोटो खींच रहा था। इस दौरान उनकी हत्या हो गई। तो ये मुझे बहुत तोड़ने वाली घटना थी। मैं उनकी डेड बॉडी के पास बैठा रहा 5 घंटे, वो जीवन में मैं भूल नहीं सकता कभी। फिर एनजीटी गए, वो एनजीटी में भी अनुभव काफ़ी कटु रहे कि एनजीटी में 4 साल घुमाने के बाद वहाँ पे 2016 में एनजीटी के जज खुद इस इलाके में आ गए। ये मैंने न्यायिक इतिहास में बहुत अनोखा मामला है कि जज खुद आए इलाके में, उन्होंने देखा कि मैं देख के आया हूँ सब ठीक है। तो बड़ा हम लोग टूट गए थे साथ आंदोलन करने वाले कि इतने जुर्म ज्यादती अत्याचार के बाद 2 दर्जन के लगभग मुकदमे थे, ये थे पुलिस का वो। फिर हाई कोर्ट ने टोका कि बार बार मुकदमों के कारण बताइए, तो पुलिस कोई स्पष्ट कारण नहीं रख पाई। उसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला कुछ रुका, लेकिन वो उस मुकदमों की आप अंदाज़ा लगाइए कि हर तीसरे दिन कोर्ट में जाके खड़ा होना, पूरा दिन वहाँ परेशान होना, और ये सिलसिला दमन का बढ़ता गया, जो भी लोग खड़े होते। On the other side, the grey gives way to green. Villagers are still drawing clean water, herding their livestock on the hills and farming across hectares of land. But they remain anxious because the threat of mining looms here too. And if what they fear comes true, they too would meet the same fate as their neighbors. पिछले करीब 4 महीने से जल, ज़मीन और जंगल की रक्षा को लेकर बड़ी मजबूती से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी जो जयपुर की है, उसके द्वारा इन गांवों में लाइमस्टोन चूना पत्थर खनन को लेकर 800 हेक्टेयर ज़मीन लेने का जो प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा है, यानी प्रस्तावित है, इसी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में हम इस खनन परियोजना को अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। यहाँ की जनता इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह अनभिज्ञ थी। इसका पता
19 सितंबर 2025 को तब चलता है जब ईसी के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई भीमाना ग्राम पंचायत में आयोजित होती है और ठीक उसके एक दिन पहले इसका पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसी पत्र के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्षेत्रवासियों को पता चल जाता है और उसके बाद से ही क्षेत्र में लगातार आक्रोश है लोगों में। 800 हेक्टेयर में से लगभग 75% ज़मीन निजी खातेदारी है, प्राइवेट लैंड है, जिसमें लोगों की सिंचित भूमि है और इन्होंने बताया नॉन इरिटेड यानी कि असिंचित भूमि है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं होता, जबकि आज भी लोग उसी कृषि कार्य के माध्यम से वहाँ पर जीविका का निर्वहन कर रहे हैं। लोगों की मुख्य आजीविका का जो साधन है वो कृषि है, लेकिन इस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के उद्देश्य से कागज़ों में इस ज़मीन को असिंचित बताई गई है। लोगों ने ये मांग सरकार से की, सिरोही जिले के अधिकारियों से की, जनप्रतिनिधियों से की कि जो कागज़ों में असिंचित भूमि बताई है ये किसने बताई है, इसकी जांच कमेटी बिठाई जाए, इसकी जांच की जाए। हालांकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था, जब इन ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों का घेराव किया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी जाँच करवाएंगे, लेकिन वो आश्वासन आज भी सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित है। In this so-called Banjar Zameen live Vimal, Mohan, Amia and hundreds of others. Some in kacha houses, some in pakka houses. हमारे ना तो है लाइट, ना है हमारी रोड। हमें आर्थिक स्थिति इतने कमज़ोर है कि हम जीने के लिए मजदूरी कर रहे, भटक रहे हैं। ना तो हमारे घर पर कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे खुद के देखा जाए तो मेरे पिताजी नहीं है। घर तो सर मजदूरी के ऊपर ही चला रहे हैं। जो सौंफ की खेती है उसको किलो 2 किलो में बेचकर राशन का सामान लाते हैं और ऐसे ही गुजारा हो रहा है। और यदि हम देखा जाए तो वो हमारे सामने कुआं है, उसके अंदर हम डीजल डालकर खेती करते हैं और पानी निकालते हैं। ये डीजल भी सर देखा जाए तो 95 के रुपये के आसपास में है। यदि हमारा गुजारा करे या हम डीजल डालकर खेती करें, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो हमारी खेती भी जलती हुई पैदा होती है। तो अनाज जो होता है ना, उसकी जो मोटाई होती है वो तो कम हो जाती है, क्योंकि उसको सही टाइम पर पानी नहीं मिलता। उसका कारण है कि डीजल का भाव। वो बरसाती खेती होती है, बारिश के हिसाब से वही होती है। हम अपने ज़िंदा है तो सिर्फ जल जंगल ज़मीन के ऊपर। जो ये हमारे जल जंगल से हमें जो जड़ी बूटियाँ, कुछ जो हमारे टिबरू नाम के जो आते हैं फल, उसको बेचकर ही हम जीवन यापन कर रहे हैं। अभी भी ये मेटाकाश कंपनी जो इसके खनन परियोजना में ये घर बोले था, ये सब जा रहे हैं, ये ज़मीन पूरी जा रही है। अब हमारे को रहना का करना क्या, बच्चों को खिलाना का क्या, लेके कहाँ जाने का, करने का क्या, कुछ पता नहीं। ये कम से कम 25 साल से तो रह रही है हम सब। अब कंपनी बोल रही है कि ये सब मतलब क्या है, वो बंजर भूमि है। सर आप देखो कहाँ बंजर है, ये बिल्डिंग बनाई हुई है मेहनत मजदूरी करके। लोग वहाँ गरीब किसान आदिवासी कोई भी फसल नहीं ले पा रहा है, उसके लिए तो आज सब कुछ ज़मीन ही है उसकी, जो पुश्तैनी है उनके बाप दादाओं की ज़मीन है, और वही बंजर हो जाएगी तो उसके लिए फिर आजीविका कमाने का क्या साधन है। आप चाहे अरबों रुपए भी खर्च कर लोगे फिर भी आप पहाड़ नहीं बना सकते। ऐसा कोई गांव नहीं होगा सिरोही जिले का जहाँ पर अवैध माइनिंग नहीं होती होगी। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्तियाँ होती है। For years, journalist and advocate Tushar Purohit has been documenting and legally pursuing cases emerging from Rajasthan's mining belt. This area that is still green is under threat too. The villagers of Neemkathana have been protesting against Ojasvi Marvels and Granites Private Limited, which started fencing work and was documented bringing in heavy machinery from January 16, 2026. According to a writ petition filed in the Supreme Court, the agricultural fields and houses of some villagers fall within the area leased out for mining. The villagers fear that if the mining starts, it will dry up the Girjan River, which originates from the Aravalis, one of the last surviving ones of its kind. At least 5 such rivers have diminished or are virtually dead,
which include the Kasavati River, which has now been reduced to a mere drain. This wouldn't be the first time that the villagers have protested to protect the river and nearby areas. Over the years, they have protested and fought several times to protect the river, which all of their lives depend on. आज जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति भयावह है, तब लोग चिंतित हैं। हम तो भी 30 साल से परेशानी झेल रहे हैं। हमारी परेशानी की वजह से चिंतित नहीं है लोग। जब एक जज आके ये कहे कि ये ठीक है तो टूट जाता है। जब मेरे बड़े भाई इस दुनिया से गए मेरी वजह से, मैं टूट गया था, मैं इलाका छोड़ के जा रहा था और बहुत ही सदमे में था। लेकिन क्या करें, फिर लगा कि इस इलाके के लोगों के साथ बहुत बड़ा अनजस्टिस होगा, उनको छोड़ के चले जाना। कि जितना भी टूटा फूटा लड़ रहे हैं, कम से कम साथ तो खड़े हैं। थकान होती है, लेकिन इसके अलावा विकल्प क्या है? ये आप अपने अस्तित्व को, या तो हम क्या मरने से अच्छा है कि लड़ना, लड़ के मरे। कि अगर बच गए, जीत गए, तो हम नहीं, आने वाली जनरेशन यहाँ ठीक रहेगी। और एक पूरी दुनिया को अपने विकास के मॉडल पर सोचना पड़ेगा। और मर गए तो आने वाली नस्लें हमारी लड़ाई से सीखेंगी कि इनके खिलाफ लड़ना ही एकमात्र विकल्प है।